Hello students, today we will discuss a new topic of change in profit sharing ratio among the existing partners. If you have not subscribed the channel until now, press subscribe it and press the bell icon for notification of new videos, like and share it also. Today we will study valuation of goodwill by weighted average profit method. Average profit method we have discussed in previous video. Now we will discuss valuation of goodwill by weighted average profit method in this video. What is the formula of valuation of goodwill by weighted average profit method? क्लियर है बात? ओके. Formula. What is the formula to calculate valuation of goodwill by weighted average profit method? Formula is goodwill is equal to weighted average profit into number of year purchase. अब बात आती है हाउ वी विल कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स. This is the formula to calculate weighted average profit, and weighted average profit multiplied with number of year purchase will be calculated goodwill. Weighted average profit method is considered better method in compared to simple average profit method because क्योंकि it assigns more weightage to the profit of latest year. ये उस ईयर को ज़्यादा महत्व देते हैं, मोर वेटेज देते हैं जिस करंट ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, विच इज़ मोर लाइकली टू बी अर्नड इन फ्यूचर, और ताकि फ्यूचर में भी इसके अकॉर्डिंग बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है या कमाएगा. इसका क्या अजम्पशंस हम डिसाइड करते हैं बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. और दिस मेथड इज preferred when the profit over the past 4-5 years have been continuously rising or falling. ये मेथड सूटेबल है. कब प्रिफेर किया जाता है? जब लास्ट 4 ईयर्स में या तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो या कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहा हो. Now we will discuss with a practical example how weighted average profit method helps in calculation of valuation of goodwill. This is the question. The profit of the firm of last 5 years were as follows. This is the last 5 year profit 11, 12, 13, 14, 15. You are required to calculate valuation of goodwill on the basis of 2-year purchase of weighted average profit. भाई कुछ नहीं, हम कर देंगे. हमारा फॉर्मूला क्या है गुडविल का कैलकुलेट करने का? What is the formula? फॉर्मूला है weighted average profit into number of year purchase. तो number of year purchase how much? 2 year. अब हमें कैलकुलेट करना है weighted average profit. weighted average profit का फॉर्मूला क्या है? total product of profit upon total of weight. तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस स्टार्ट. बाय 2011, 2012, 13, 14, 15 प्रॉफिट है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000. This is the profit. Now weight has been given in the question. 11 का 1, 2, 3, 4, 5. Now we have to calculate total product of profit. Okay. Now we have to calculate
Profit will be calculated, product will be calculated profit into weight. 43 into 1 43,000, 50 into 2 1 lakh, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,56,000, 2,60,000, 65 into 4 85,000 into 5 will be 4,25,000. It will be total product of profit will be 9,84,000 and total weight is 54993 plus 2 plus 1 is equal to 15. तो टोटल वेट हो गया 15. तो हम फॉर्मूला में रखेंगे 984 डिवाइडेड बाई 15. तो जब हम कट करेंगे इसको तो हमारा आएगा 65,600 और हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,600 मल्टीप्लाई बाई 2. देन गुडविल विल बी 1,31,200 रुपीज. क्लियर है? दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मूला या दिस इज द वे टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. क्लियर है बात? नाउ we will discuss one more question with an adjustment के साथ to calculate weighted average profit method. Then how it will be calculated? Let us start. Question is given, calculation the goodwill of a firm on the basis of number of year 2-year purchase of the weighted average profit of last 5 year. तो हमें सबसे पहले पता चल गया नंबर ऑफ ईयर कितना है, परचेज 2. क्लियर है बात? एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर. वेट आर असाइंड 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली टू प्रॉफिट एंड 31 मार्च 2015 16 17 18 19. क्लियर है बात? कुछ नहीं. ओके, दिस इज द प्रॉफिट गिवन ऑफ ईयर्स 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19. नो प्रॉब्लम. नाउ आफ्टर स्क्रूनिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवेल्ड द फॉलोइंग्स. क्या क्या है? एन एबनॉर्मल लॉस of 50,000 was incurred during the year 31st March 2015. ठीक है. An abnormal gain 30,000 was earned during the year 31st March 2016. No problem. Repairing to car amounting 40,000 was wrongly debited to vehicles account. On 1st January 2018, depreciation was charged on vehicle at the rate 10% per annum with straight line method. No problem, कर देंगे. Closing stock on 31st March 2018 was undervalued by 50,000. No problem. Let us start with question. By profit which are given 15, 16, 17, 18, 19. ठीक है. 2015, 16, 17, 18, 19. प्रॉफिट हमें गिवन है. हाउ मच प्रॉफिट? प्रॉफिट गिवन है 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 lakh and 3,50,000. Now before calculating we have to adjust, we have to do adjustment. An abnormal loss rupees 50,000 was incurred during the year 31st March 2015. एक abnormal loss incurred हो गया 31st March 2015 में. कितने का? 50,000 का. भाई अगर एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ी थी कि एबनॉर्मल लॉस अगर नहीं होता तो हमारा क्या प्रॉफिट ज़्यादा होता. तो इसका मतलब कि एबनॉर्मल लॉस इसमें से लेस किया है तब हमारा 36,000 है. तो हम क्या करेंगे? ऐड. वी हैव मेंशन द क्लियर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट वीडियो. यू कैन गो
and watch it. 36,000 plus 50,000. Clear है बात? Okay. Now second adjustment. Abnormal gain 30,000 was earned during the year 31st March 2016. Abnormal gain, it will be deducted. How much? 30,000. No problem. Next one. Repair to car amounting 40,000. एक कार रिपेयर की थी 40,000 की, was debited, wrongly debited to vehicles account. vehicles account में debited कर दी instead of रिपेयर. तो अगर रिपेयर होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या होता, कम होता. वो रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या आ गया, ज़्यादा आ गया. उससे क्या हो गया, ज़्यादा आ गया. और कब? 2018 में. तो इसका मतलब ये हमारा 31 मार्च है, 1 जनवरी 2018. तो इसका मतलब कि 2018 ईयर में इट मीन्स इट विल बी डिडक्टेड. हाउ मच? 40,000. कोई बात नहीं? बात भाई कोई प्रॉब्लम है? नहीं है. नेक्स्ट वन अब देखते हैं. नाउ आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन. व्हाट? Depreciation was charged on vehicle at the rate 10% per annum with straight line method. क्या था, हमने एक कार रिपेयर करवाई थी जिसकी कॉस्टिंग आई 40,000. वो रिपेयर ना मान करके क्या मान लिया, उसको डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में, और उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन चार्ज. किस रेट से? 10% की रेट से. तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल का हमारा बनता है 40,000 अपॉन 10/100. तो पूरे साल का बनता है 4,000. लेकिन जनवरी में ये हुआ था रिपेयर ना मान करके, उसको क्या मान लिया, व्हीकल. तो 3 मंथ का, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ का कितना आएगा, 4,000 इंटू 3/12. तो कितना आएगा, ये आएगा 1,000 रुपीज़. 1,000 रुपीज़. तो अब ये डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेप्रिसिएशन में क्या कर दिया, लेस कर दिया, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम आया है. तो अब उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कितना? 1,000. और ऐसे ही 2018 में किया है. तो नेक्स्ट ईयर जब पूरे साल का, जब साल का एंड आया होगा, जब डेप्रिसिएशन क्या कर दिया होगा, लेस कर दिया होगा. क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ना मान करके उसको क्या मान लिया था, अकाउंट में डेबिट कर दिया था, व्हीकल्स अकाउंट में. तो उस साल भी क्या होगा, वो ऐड होगा नेक्स्ट ईयर में भी. क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट. अब क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड. जो क्लोजिंग स्टॉक है 2018 में वो कम लिखा, अंडर वैल्यूड कितना, 50,000. तो इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या लिखा, कम लिखा. तो कम लिखने से हमारा प्रॉफिट क्या आया होगा, कम आया होगा. तो इसका मतलब कि अब उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कौन से ईयर में? ये ईयर का था 2018. तो अब क्या करेंगे, 2018 में क्या करेंगे, उसको ऐड. क्लियर है बात? भाई क्लोजिंग स्टॉक कम आया है, तो जिसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया. और उसको सही करने के लिए अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. क्लियर है बात? अब जब नेक्स्ट ईयर वो 50,000 ऐड किया है, तो इसका मतलब कि जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर आकर के वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक. भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है 2018 का वो अंडर वैल्यूड है. इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक भी क्या है, अंडर वैल्यूड है. भाई अंडर वैल्यूड है, जिसके कारण प्रॉफिट क्या है, ज्यादा आया होगा. भाई ये कम है और इधर की साइड ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट क्या आया होगा, कम आया होगा. ये ज्यादा होना चाहिए था और ये कम होना चाहिए था, इसके कारण तब सही आता. लेकिन अब क्या है, ये साइड कम है और ये साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट क्या आया होगा, ज़्यादा आया होगा. तब क्या करेंगे, हम उसको 2019 में लेस करेंगे. कितना? 50,000.
क्लियर है बात। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, वी विल टेक इट। बट 2015 का जो टोटल प्रॉफिट है 86,000, 2016 का है वो कहलाएगा 1,40,000, 2017 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं तो 1,90,000, 2018 का है 2,11,000 एंड 2019 का है 3,04,000। क्लियर है बात। दिस इज द प्रॉफिट। नाउ वी विल कैलकुलेट विद द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है बात। नाउ फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा है 86,000, 15 का, 14 का 1,40,000, 17 का 1,90,000, 2,11,000, 3,04,000। अब वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वेट कितना है 1 2 3 4 5, टोटल वेट 15। अब जो टोटल प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आना चाहिए, अब आएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा भी। तो कितना है 86,000, 2,80,000, 5,70,000, 8,44,000, 15,20,000। तो टोटल बैठेगा वो 33 लाख, सॉरी कितना 33 लाख। अब ये तो हमारा आएगा टोटल प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला हमारा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट है 33 लाख डिवाइडेड बाई 15, तो यह आ गया 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000। तो गुडविल की जो अमाउंट आएगी इट विल बी रुपीज़ 4,40,000 रुपीज़ विल बी गुडविल वैल्यू। क्लियर है बात। इस तरीके से, इस पैटर्न से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर है बात। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।